Hello students, how are you all? I hope you all are keeping well. Myself, Miss Rupal, your EVS teacher. Dear students, today we are going to learn about animal shelter. In the first lesson, we learned about our environment. In the second lesson, we learned about the animals present in our environment. So, today we are going to learn lesson number 3 in EVS. Before going to start the lesson, let me ask you some questions. Are you ready to answer them? Yes. So think and answer me. Okay, students? My first question is that where do you live? Yes. I know everyone answer me in the house or in the home. हम सब कहाँ पे रहते हैं? In the house, घर में. Yes, we do live in house. My next question is, where do cow live? गाय कहाँ पे रहती है? Yes, cows live in the shed. So, if you see that all the animals, they have their own houses. जैसे हमारे घर है वैसे एनिमल्स के भी घर होते हैं. So, this houses, this place of living is called the shelter. तो ये जो घर है जिस पे हम लोग रहते हैं, सारे लिविंग थिंग्स रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, they are called the shelter. So, today, what is the name of our lesson? Animal shelter. So, today we are going to learn about animal shelters. Are you ready, students? Okay. So, open your textbook, page number 15. And see lesson number 3, animal shelters. Before going to start some points from the lesson, let's see some questions given for us. यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व देम. ओके. What is the first question? The cat is lying in wait for someone. Who is that? Here is a question and this question is depend on this first number picture. आपकी स्क्रीन पे आपको पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं. उसमें फर्स्ट पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? बिल्ली किसी का इंतज़ार कर रही है. The cat is lying here and waiting for someone. Who is that someone? वो किसका इंतज़ार कर रही है? Yes. Did you think? Yes. This is mouse. वो किसका इंतज़ार कर रही है? चूहे का. Next question is that what has frightened the crows? कौवों को कौन डरा रहा है?
Why are they trying to frighten the cat away? और वो लोग बिल्ली को डरा के उसे क्यों भगाना चाहते हैं? The second question depends on this second number picture. सेकेंड नंबर पिक्चर में सबको बिल्ली और कौवे दिख रहे हैं. यस. द कैट इज सिटिंग अंडर द ट्री. बिल्ली कहाँ पे बैठी है? पेड़ के नीचे. हियर आर सम क्रोज एंड व्हाट हैज फ्राइटन्स द क्रोज? द कैट. यहाँ पे बिल्ली है और कौवे हैं. बिल्ली कौवों को डरा रही है और कौवे बिल्ली को डरा के उसे भगाना चाहते हैं. Why are they trying to frighten the cat away? वो लोग बिल्ली को क्यों भगाना चाहते हैं? Here you can see some crows are trying to frighten that cat away. Why? Because they are thinking that this cat will eat their young ones. वो क्यों उसे डरा के भगाना चाहते हैं? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि बिल्ली उनके बच्चों को खा जाएगी. Here in the nest you will find some young ones are there and some crows are here trying to frighten away the cat. And here is a crow trying to save their young ones. Okay? Now let's see some next questions. Now, what do birds use to build their nest? Here you seen in the picture nest of the crow. Okay? And you know that many birds they build their own nest. पिक्चर में हमने कौवे का घोंसला देखा. यस. और हमें मालूम है कि बहुत सारे बर्ड्स हैं जो अपने घोंसले बनाते हैं. So we have to think and tell that what do birds used to build their nest? वो क्या क्या चीज़ें यूज़ करके अपना घोंसला बनाते हैं? Birds are using so many things which are available in the environment and then they built their nest. हमारे पर्यावरण में जो भी चीज़ें उनको मिलती है, जो भी चीज़ें अवेलेबल है, वो चीज़ों का उपयोग करके वो अपना घोंसला बनाते हैं. So they are using the things from the environment like grass, straw, twigs, cotton, string, thread and many more. ये सारी चीज़ें जैसे कि घास है, स्ट्रॉ है, धागा है, रुई है और भी सारी बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करके वो अपना घोंसला बनाते हैं. They are using and they build their nest. Okay? Next question is very easy. Which animals live in burrows? Burrows मतलब छेद, होल. Okay? We know some animals living in burrows. Just now in the first picture we have seen mouse. पहले पिक्चर में सबको चूहा दिख रहा है. Okay. So we can give as answer which animals live in burrows. Mouse. Snakes also live in burrows.
वो भी होल में, छेद में रहते हैं. स्नेक्स, सांप. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू द हेन्स वी कीप लिव. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम लोग जो मुर्गी पालते हैं वो कहाँ पे रहती है. हु बिल्ड्स देयर शेल्टर. और उनका शेल्टर, उनका घर कौन बनाता है. द हाउस ऑफ द हेन्स, दैट इज कूप. हैन का जो घर है उसे क्या बोलते हैं, कूप और hen house. So hens live in the coop and who builds their shelters? Of course we. उनके shelters, उनके घर कौन बनाता है, हम लोग. So man builds their shelter. Okay students. Now, why do we need houses? हमें घर की ज़रूरत क्यों है. Very cold weather, gusty winds, scorching sun, heavy rains can cause as great discomfort. We live in houses to protect ourselves from them. A house also protects us from thefts. बहुत ठंडा तापमान, तेज़ हवा, तेज़ धूप, बहुत बारिश, ये सारी चीज़ें हमारे लिए अनुकूल नहीं है. इसलिए हम लोग घरों में रहते हैं जिससे कि ये सारी चीज़ों से हमें प्रोटेक्शन मिले. A house also protects us from thefts. thefts मतलब चोर. हमारा घर हमें चोरों से भी बचाता है. Some people live very close to forests. कोई लोग जंगल के बहुत नज़दीक रहते हैं. They have to face the threat of wild animals. और उन लोगों को जंगली जानवरों का डर लगा रहता है. A house protects them from the wild animals too. और जो घर है, घर में रहने से उन्हें ये जंगली जानवरों से भी प्रोटेक्शन मिलता है. Here one new word is there, shelter. What is the meaning of shelter? A safe place where one is protected from any danger. A place where one is protected from the sun, rain, wind, etc. शेल्टर मतलब ऐसी जगह जहाँ पे खतरे से हम बच सके और वो जगह हमें गर्मी, बारिश और हवा से, तेज़ हवा से भी बचाए. Like us, do animals also need shelters? जैसे हमें घर की ज़रूरत है, क्या एनिमल्स को भी शेल्टर ज़रूरी है? Yes, some animals do. They build shelters for themselves. Some other animals find shelter in safe places in the environment. कोई प्राणी अपना शेल्टर, अपना घर खुद बनाते हैं और कोई एनिमल्स पर्यावरण में सुरक्षित जगह को अपना घर चुनते हैं. Now we will see animals who build shelters for themselves. अभी हम लोग ऐसे प्राणियों को देखेंगे जो अपना शेल्टर, अपना घर खुद बनाते हैं. You must have seen bird's nest. सबने पंखियों का घोंसला देखा है ना? Yes. Nests are shelters that birds build.
बर्ड्स आर अफ्रेड ऑफ एनिमल्स दैट ईट एग्स। पंखियों को ऐसे प्राणियों से डर लगता है जो अंडे खाते हैं। सो दे नीड अ सेफ प्लेस टू ले देयर एग्स। इसलिए उन्हें अपने अंडे रखने के लिए एक सुरक्षित जगह चाहिए। बेबी बर्ड्स कम आउट ऑफ द एग्स। फिर वो अंडे में से बेबी बर्ड्स निकलते हैं। देयर आर एनिमल्स दैट ईट दिस यंग बर्ड्स। लेकिन वहाँ पे ऐसे भी एनिमल्स हैं जो ये यंग बर्ड्स, जो बच्चे निकले हैं, उनको खाते हैं। द यंग बर्ड्स आर टू वीक टू डिफेंड देमसेल्व्स। ये जो बेबी बर्ड्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं अपने आप को बचाने के लिए, डिफेंड करने के लिए। द नेस्ट कीप्स द यंग वंस सेफ। लेकिन अगर वो घोंसले में रहेंगे तो वो सुरक्षित रह सकते हैं। दैट इज़ वाई बर्ड्स बिल्ड नेस्ट। दे यूज थिंग्स लाइक ग्रास, स्ट्रॉ एंड ट्विग्स टू बिल्ड नेस्ट। ये सारी चीज़ें यूज़ करते वो लोग घोंसला बनाने के लिए, लाइक ग्रास है, स्ट्रॉ है, ट्विग्स है। दे मे इवन यूज कॉटन, वूल एंड पीसीज ऑफ थ्रेड एंड स्ट्रिंग। रुई, लकड़ी के पीस, धागे, ये सारी चीज़ों का भी वो उपयोग करते हैं। दिस मेक्स द नेस्ट सॉफ्ट एंड वार्म इनसाइड। ये सारी चीज़ें घोंसले को सॉफ्ट और वार्म बनाते हैं, मतलब अंदर से उसको गरम रखते हैं। बट I am sure that you must have seen the nests of all birds are not all alike. लेकिन आप सब लोगों ने देखा होगा कि सारे बर्ड्स के जो नेस्ट है वो एक जैसे नहीं होते हैं। Birds choose convenient places to build nest. बर्ड्स ऐसी जगह पसंद करते हैं, कन्वीनियंट प्लेस मतलब सुविधाजनक स्थान पसंद करते हैं जहाँ पे वो अपना घोंसला बना सके। लुक एट द वीवर बर्ड। वीव मतलब बुनना, वीवर बर्ड मतलब बुनकर पक्षी। इट चूजेस अ थॉर्नी ट्री विच हैज सम ब्रांचेस हैंगिंग ओवर वाटर। जो वीवर बर्ड है वो ऐसे पेड़ पे अपना घोंसला बनाता है जहाँ जो पेड़ पे थॉर्न मतलब कांटे हो, और विच हैज़ सम ब्रांचेस हैंगिंग ओवर वाटर, और वो जो पेड़ की शाखाएं हैं वो पानी के ऊपर लटकती हो। It birds builds its nest on the highest of these branches. जो सबसे ऊंची शाखाएं है वहाँ पे वो अपना नेस्ट बिल्ड करता है, बनाता है। Animals that eat eggs find it difficult to reach this nest. जो एनिमल्स अंडे खाते हैं उनके लिए उतनी ऊंचाई तक पहुँचना मुश्किल हो जाता है। द टेलर बर्ड इज़ स्मॉलर देन अ स्पैरो। जो टेलर बर्ड है वो चिड़िया से भी छोटा होता है। इट सिलेक्ट्स अ प्लांट विथ बिगर लीव्स एंड बिल्ड्स इट्स नेस्ट बाय स्टिचिंग द लीव्स टुगेदर। वो ऐसे पेड़ पे अपना घोंसला बनाता है जो पेड़ के लीव्स है, वो पत्ते जो है वो बड़े हो, और वो पत्तों को सिल के, जो सॉफ्ट डांडी रहती है पत्तों की, उससे वो सिल के अपना घोंसला बनाता है। दिस लिटल नेस्ट इज़ बिग इनफ फॉर द लिटल टेलर बर्ड। और ये छोटा सा घोंसला छोटे से टेलर बर्ड के लिए इनफ है। नाउ सम इंसेक्ट्स ऑल्सो बिल्ड देयर ओन शेल्टर्स। कोई कोई कीड़े भी जो है, इंसेक्ट्स मतलब कीड़े,
वो भी अपना शेल्टर खुद बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हनी बीज बिल्ट देयर हनी कॉम्स ऑन ट्रीज और अंडर द रूफ ऑफ एन ओवरहैंगिंग क्लिफ। जो मधुमक्खियाँ हैं वो अपना छत्ता हनी कॉम खुद से बनाते हैं। वो ऐसी जगह पसंद करते हैं कि वो पेड़ पे या लटकती हुई चट्टान के ऊपर अपना शेल्टर बनाते हैं। रैट्स एंड माइस लिव अंडरग्राउंड इन फिल्स। जो चूहे हैं वो ज़मीन के नीचे रहते हैं। दे dig into the soil and make holes and burrows to live in। वो ज़मीन को खोद के वहाँ पे छेद या बिल बनाते हैं और उसमें वो रहते हैं। Rats and mice also live in areas where people live। हमारे आसपास भी हमें चूहे दिखाई देते हैं। They make holes in the walls or under the floors in the houses। वो फ्लोर्स के नीचे मतलब ज़मीन के नीचे छेद या बिल बना के वो वहाँ पे रहते हैं। दे मोस्टली टेक शेल्टर इन मड हाउसेस एंड नॉट इन दोज बिल्ड विथ सीमेंट। लेकिन मोस्टली जो रैट्स एंड माइस है वो मिट्टी के घरों में अपना शेल्टर बनाते हैं, ना कि सीमेंट से बने हुए घरों में। That is because they cannot dig holes into cement construction। क्योंकि सीमेंट से बनी हुई जगहों को वो गड्ढों को खोद के वहाँ पे बिल या छेद नहीं बना सकते, इसलिए वो मिट्टी के बने हुए घरों में अपना शेल्टर बनाते हैं। Now we will see that some animals find ready-made shelters in the surroundings। Some animals do not make any efforts to build a shelter। कोई एनिमल्स ऐसे हैं जो अपना शेल्टर बनाने की मेहनत नहीं करते हैं। They simply look around for a safe place। और वो ऐसी जगह को अपना शेल्टर पसंद करते हैं जहाँ पे वो सेफ हो, सुरक्षित हो। सम डव्स एंड पिजन्स लिव इन फॉरेस्ट। जो डव्स है, कबूतर है, वो जंगल में रहते हैं। सम लिव इन स्मॉल हॉलोज इन हाई क्लिफ्स। कोई ऊंची चट्टानों पे रहते हैं। सम लिव नियर आवर हाउसेस। और कोई जो बर्ड्स है मीन्स पिजन्स है वो हमारे घर के आसपास रहते हैं। दे फाइंड शेल्टर इन गैप्स इन वॉल्स। दीवालों के बीच में जो गैप होता है, जो जगह होती है, वहाँ पे वो अपना शेल्टर पसंद करते हैं, बनाते हैं। टाइगर्स, लेपर्ड्स, हाइनस लिव्स इन केव्स। बाघ है, तेंदुए है, लकड़बग्गा है, वो गुफाओं में रहते हैं। केव्स मीन्स गुफाओं में रहते हैं। सम टाइप्स ऑफ बैट्स लिव इन टॉल ट्रीज। बैट्स है वो टॉल ट्रीज को अपना शेल्टर पसंद करते हैं। बट सम लिव इन डार्क कैवेंस इन माउंटेन्स। और कोई गुफाओं में रहते हैं। और दे लुक फॉर शेल्टर इन ओल्ड डेजर्टेड टम्बल डाउन बिल्डिंग्स। जो पुरानी सुनसान इमारत है उसे वो अपना शेल्टर बनाते हैं। डू यू नो दैट इट इज़ बिलीव्ड दैट अ कोबरा लिव्स इन एन एंटहिल्स, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। कोबरा जो सांप है वो एंटहिल्स में रहते हैं। इट इज़ नॉट ट्रू। एंटहिल्स आर बिल्ट बाय एंट्स। एंट्स है वो एंटहिल्स बनाते हैं एंड नॉट बाय अ कोबरा। द कोबरा लिव इन होल्स। जो कोबरा है, जो सांप है, वो छेद में या बिल में रहते हैं।
Now, lastly, we see the shelters for domestic animals. When people keep animals, they build shelters for them. We keep animals like hens, cows, horses, etc. So, we build shelters for them. A cowshed is built for cows. The shelter built for hens is called a chicken coop or hen house. मुर्गी के लिए जो घर बनाते उसे बोलेंगे कूप और hen house. The shelter for a horse is called a stable. जो घोड़े का जो घर है शेल्टर है उसे बोलेंगे stable. So students, what we have learned today? Animals need a shelter to protect themselves from the cold, wind, sun and rain. Animals को अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, बचाने के लिए क्या चाहिए? शेल्टर्स चाहिए. किससे बचने के लिए? ठंडी से, तेज़ हवा से, बारिश से और तेज़ धूप से. Some animals build their own shelters. कोई एनिमल्स अपना शेल्टर, अपना घर खुद से बनाते हैं. Some animals look for ready shelters in their surroundings. कोई एनिमल्स अपने आप में जो सुविधाजनक जगह है उसे अपना शेल्टर पसंद करते हैं. We build shelters for the animals we keep. और हम जो एनिमल्स पालते हैं उनके लिए शेल्टर हम लोग बनाते हैं. So students, you have to revise the whole lesson. Soon we will meet in the next class with the notes of this lesson. Till then, stay home, stay safe.